Hello friends, welcome back to our YouTube video Explore with Fun के साथ. Today we will start the front chapter of the fundamental unit of life. So basically I have made the three videos of the chapter the fundamental unit of life. It is the part third and part first and second. If you have not seen, I will provide you the link in the description. You can go there and see it. And I will also provide you the notes. So friends, today we will talk the Golgi apparatus. The Golgi apparatus was first discovered by the Gamilo Golgi. जो गोल्गी apparatus था, it was discovered by a biologist named Camillo Golgi. So before starting and talking about Golgi apparatus, I want to discuss with you the Camillo Golgi scientist. Oh, sorry, biologist. Camillo Golgi was born at Corneto near Brescia in 1843. He was born there. He studied medical at University of Pavia. He studied his medicine. About medicine, he studied at University of Pavia. After graduating in 1965, he graduated in 1865. He continued to work in Pavia at the Hospital of Saint Mario. He started working in Hospital of Saint Marito in Pavia. That time he most of his investigation were concerned with the nervous system. मीन्स जितनी भी उसकी इन्वेस्टिगेशन हुआ करती थी उस टाइम पे वो सारी नर्वस सिस्टम के ऊपर बेस्ड होती थी. In 1872, he accepted the post of chief medical officer at the Hospital of Coronica 6 at Avestigrasso. Means when he was promoted to the chief medical officer at the Hospital of Coronica 6 at Avestigrasso. Avestigrasso एक जगह का नाम है. So he first started his investigation into the nervous system in a little kitchen of the hospital. Means he started his that investigation about the nervous system in the little kitchen of the hospital, which he had converted it into a laboratory. Means he converted the kitchen into a laboratory. However, the work of the greatest importance which Golgi carried out was a revolutionary method of studying इंडिविजुअल नर्व एंड सेल स्ट्रक्चर. हाउएवर मीन्स जो ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंट था जिसकी गोल्गी कैरिड करा था वॉज द रिविजनली मेथड ऑफ स्ट्रेनिंग द इंडिविजुअल नर्व एंड सेल स्ट्रक्चर एंड दिस मेथड इज ऑल्सो रिफर्ड एज ब्लैक रिएक्शन. जो अब का मेथड है वो हम लोग ब्लैक रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है. This method uses a weak solution of silver nitrate and is particularly valuable in tracing the process and most delicate refluence cells. All through his life, he continued to work on these lines, modifying and improving these techniques. Means उसने अपनी पूरी लाइफ ही continue to work on these lines. उसने अब वाली अपनी लाइन्स पे वर्क करता रहा, उनको मॉडिफाई करता रहा, उनको इम्प्रूव करना था. जैसे मीन्स नई नई टेक्निक लगा के उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करता रहा. Golgi received the highest honor and award in recognition of his work. Means he has received the highest honor award in his recognition of his work. He shared the Nobel Prize in 1906 with the Santiago Ramilo Cajal for their work on the structure of the nervous. Means ही वो उसका जो नोबल प्राइज़ था उसने अपना नोबल प्राइज़ को 1906 में सैंटिगो रेमोजो कलेजल नाम के एक बायोलॉजिस्ट के साथ शेयर कर दिया फॉर देयर वर्क ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द नर्वस सिस्टम. सो आपको जहाँ तक कि ये कैमिलो गोल्गी के बारे में क्लियर हो गया होगा. नाउ लेट्स गो ऑन व्हाट इज़ गोल्गी apparatus. So basically Golgi apparatus consists of a system of membrane bound vessel flat sacs. उसमें एक flat end sacs होते हैं arranged approximately parallel to each other. Parallel का मतलब तो आप सभी लोग जानते होंगे. जो the lines which never meet or the distance between them is same for always is known as parallel lines. Please comment me the answer that what is parallel line. These membranes often have connection with the membranes of ER. जो ये गोल्गी apparatus हैं इनके मेम्ब्रेन्स का ऑलवेज कनेक्शन रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाले मेम्ब्रेन से. ओके. The material synthesized near the ER is packed and dispatched to the various target inside and outside of the cell through the Golgi apparatus. जो मटेरियल होता है वो सिंथेसाइज होता है नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड इज पैक्ड एंड डिस्पैच्ड टू द वेरियस टारगेट्स ऑफ द इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल थ्रू द गोल्गी apparatus. मीन्स गोल्गी apparatus का जो वर्क होता है वो सिंथेसाइज होता है. जो वर्क नियर मटेरियल जो सिंथेसाइज होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास उसको पैक और डिस्पैच करना और उसको वेरियस टारगेट्स इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल को पहुंचाना. सो नाउ लेट्स सी
व्हाट इज़ लाइसोसोम। जो गोल्गी अपार्टस होता है वो लाइसोसोम का भी, वो जो लाइसोसोम है वो गोल्गी अपार्टस का एक पार्ट होता है। So basically what is lysosome and what it helps to us. Lysosomes are the kind of waste disposal system of the waste. मीन्स हम लोग कह सकते हैं जो लाइसोसम्स है वो एक तरीके का वेस्ट एक्सक्रीटा है सेल का। तो आप बस इतना ही याद करके कि समवन विल आस्क यू दैट व्हाट इज लाइसोसम, यू कैन से दैट लाइसोसम्स आर द काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। ओके फ्रेंड्स, so means it helps to protect the cell, and it also helps the protect foreign materials in entering the cell such as bacteria or food. Means this protects the cell from entering the foreign items such as this bacteria or food. Lysosomes are able to do this because they contain powerful digestive enzymes capable of breaking down all organisms. मतलब मीन्स लाइसोसम्स हैं वो इसको कंटेन्स पावरफुल डाइजेस्टिव्स, मतलब ये वो बहुत सारे पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स कैपेबल मीन्स अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं, जिससे वो बहुत सारे ऑर्गन्स को ब्रेक कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स गो टू द mitochondria. So basically what is mitochondria? So mitochondria is known as powerhouses of the cell. मीन्स ये पावर हाउस हम लोग कह सकते हैं, जैसे हम लोगों का घर का जो लाइट सप्लाई होती है घरों में, तो उसका भी एक जगह पे एक पावर हाउस होता है। मीन्स एक सब होता है, मीन्स पावर हाउस होता है जहाँ से हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। सो उसी तरह एक माइटोचॉन्ड्रिया नाम का एक चीज़ है जो कि एक पावर हाउस ऑफ सेल कहलाती है। ठीक, माइटोचॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन्स कवरिंग, मीन्स इट हैव्स टू मेम्ब्रेन्स कवरिंग। द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस वाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो पोरस होता है। पोरस का मतलब होता है बहुत थिनी पार्टिकल्स, लाइक स्पंज आप लोगों ने देखा होगा। किन किन लोगों ने स्पंज देखा है मुझे कमेंट करके बताइएगा। स्पंज आप लोगों ने देखा होगा, उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो वो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो वही पोर्स आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोचॉन्ड्रिया में थे। और जो इनर मेम्ब्रेन था वो डीपली फोल्डेड था, मतलब कि जैसे हम लोग पे बहुत डीपली फोल्ड था, मतलब कि एंड दिस फोल्ड इंक्रीजेस सरफेस एरिया ऑफ एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन। और ये जो फोल्ड्स थे वो हेल्प्स टू इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन, मतलब कि वो लोग केमिकल रिएक्शन को जनरेट करने में हेल्प कर सकते थे। तो आप एटीपी का फॉर्मूला वो फुल फॉर्म ये होता है एंडिनोसाइन ट्राइफोसेट मॉलिक्यूल, ये एक तरीके का मॉलिक्यूल है। एंड एटीपी इज़ ऑल्सो नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। जो एटीपी है था उसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल के नाम से भी जाना जाता है। तो माइटोचॉन्ड्रिया आर द स्ट्रेंज ऑर्गेनेज इन द सेंस दैट दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसम्स। जो माइटोचॉन्ड्रिया होते हैं उनका पास अपना खुद का डीएनए होता है और राइबोसम्स होते हैं। देयरफॉर माइटोचॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स। जो माइटोचॉन्ड्रिया होते हैं वो उनके पास डीएनए भी होता है खुद का और राइबोसम्स भी खुद के होती हैं, इसीलिए वो लोग कैपेबल होते हैं अपना ये खुद का प्रोटीन्स बनाने में। सो नाउ लेट्स गो टू प्लास्टिसाइड्स. So basically what is plasticides? Plasticides are only present in plant cell, means हमने आपको बताया था कि दो तरीके के सेल्स होते हैं, प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स। जो प्लास्टिड्स होते हैं वो प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होते हैं केवल, ना कि एनिमल सेल में। There are two types of plastids, means there are two types of plastids, chromoplasts and colored petals जिन्हें कह सकते हैं, and leucoplasts, white और colorless petal. तो क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग द पिगमेंट ऑफ क्लोरोफिल एज नोन एज क्लोरोप्लास्ट। सो क्लोरोप्लास्ट में हम लोग क्लोरोफिल कंटेन करते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट होता है आर इम्पॉर्टेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस ऑफ द प्लांट्स। तो व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस? The process of making food by the plants through the sunlight, water and air is known as photosynthesis. So chloroplast are also contains various yellow or orange pigment in the addition to the chlorophyll. Means जो chloroplast है वो contains various pigments, वो येलो और ऑरेंज कलर के वो लोग कंटेन करते हैं addition to chlorophyll, means chlorophyll के साथ में. So chloroplast are also contains various pigments, वो येलो और ऑरेंज कलर के वो लोग कंटेन करते हैं एडिशन टू क्लोरोफिल. मीन्स क्लोरोफिल के साथ में. सो
What is leucoplast? Leucoplasts are the primary organisms in which materials such as starch, oil and coral are stored. मैं हम लोग एक तरीके से कह सकते हैं वो एक स्टोर रूम है प्लांट्स का जहाँ पे वो प्लांट्स अपना स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन ग्रैनुअल्स को स्टोर करते हैं। बाद में वो मीन्स टाइम टू टाइम वो अपना यूटिलाइज करते हैं, जब भी उनको ज़रूरत होती होगी वो उसको अपना यूटिलाइज कर लेते होंगे। So, the internal organs of the chloroplast embedded in the material cell are called stroma. Means जो internal organization of the chloroplast consists numerous membrane layers. Means जो chloroplast होते हैं बहुत सारे जो layers होती हैं, बहुत सारी layers को stack होता है एक layers का, उसको contains करती है, तो उस material को हम लोगों को स्टोरमा बोलते हैं। And these आर सिमिलर टू द मेचोन्ड्रिया इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। जो मेचोन्ड्रिया का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है वो इसी के सिमिलर होता है। लाइक मेचोन्ड्रिया प्लास्टिड ऑल्सो हैव देयर ओन डीएनए, मतलब कि जैसे मेचोन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए और राइबोसम्स होते हैं, उसी तरीके से प्लास्टिड्स के पास भी उसके खुद के डीएनए और राइबोसम्स होते ही हैं। सो लेट्स नाउ टॉक अबाउट वैक्यूल्स। सो व्हाट इज़ वैक्यूल्स? वैक्यूल्स आर द स्टोरेज stacks फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स। सो जो वैक्यूल्स होते हैं वो सॉलिड और लिक्विड के स्टोरेज सैक्स को कंटेन करते हैं। वैक्यूल्स आर द स्मॉल साइज्ड इन एनिमल सेल वाइल प्लांट्स हैव वेरी लार्ज वैक्यूल्स। जो वैक्यूल्स का साइज़ होता है वो एनिमल सेल में छोटा होता है और प्लांट सेल में ये बड़ा ही वेरी लार्ज अमाउंट में पाया जाता है। तो सेंट्रल वैक्यूल ऑफ सम प्लांट सेल में हैव ऑक्यूपाइड 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। मीन्स इन द प्लांट सेल दिस वैक्यूल occupies the space up to 50 to 90% in the plant cell. So basically our chapter is finished, and these are the given extra question. Okay friends, our chapter is finished, the fundamental unit of life, and notes I will provide you in the description. And if you not seen the part first and part second till now, then I will provide it the link, do not worry. And please subscribe our channel and press the bell icon so that you can get our notification of our videos. एंड और क्या होता है फ्रेंड्स, हाँ लाइक बटन बताना बिल्कुल मत भूलिए, जाकि हम लोगों को करेज मिलता रहे, हम लोग आपके लिए स्टडी की वीडियोस लाते रहें, जाकि आप लोगों के कन्फ्यूज़न डाउट होते हैं। और फ्रेंड्स अगर मेरे से कोई गलती हो गई प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जाकि मैं उनको सुधार सकूँ अगली बार में। और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बना दूँगा। थैंक्स फ्रेंड्स।